Hello everyone, welcome back to my channel Edu to Fly. In this video, we are going to study the international business, its meanings, features, motives, advantages, problems, factor leading to the growth of international business, domestic versus international business. Let us start with the video. First of all, let us discuss the meaning. So, international business means carrying the business beyond the national boundaries. Its name only suggests that कि हम national boundaries के beyond कोई business conduct कर रहे हैं. Now, this business can be of trade or foreign investment. Okay. तो ये for example एक country है, तो हम trade कर रहे हैं किसी goods and services में विद कंट्री 1 2 3 और एन नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ हम डील कर सकते हैं. दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली. फर्स्ट इज बेसिकली ऑफ इम्पोर्ट, पोर्ट एंड एंट्री पोर्ट. इम्पोर्ट इज बेसिकली फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कंट्री इंडिया. अगर हम बाहर से कोई सामान मंगवा रहे हैं दैट इज इम्पोर्ट. एंड अगर हम किसी कंट्री को अपने गुड्स सेल कर रहे हैं दैट इज एक्सपोर्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंट्री पोर्ट. एंट्री पोर्ट का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज किसी भी गुड एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करवा रहे हैं फॉर रीसेलिंग टू अनदर कंट्री. सो दिस इज एंट्री पोर्ट कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं ताकि हम उसको रीसेल कर सके दूसरी कंट्री. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स or there can be exchange of services also. There is involvement of two countries or more than two countries also. Okay, there can be more than two countries, but yes, there is a condition that at least two countries can should be there. Next is the foreign currency. When we deal in the international business, we have to deal in the foreign currency. Why? Because अगर हम import कर रहे हैं so we have to make the payments in the foreign exchange only, the foreign currency only. And if we are doing exports, we will receive the money in the foreign currency. Next is the restrictions. When we are dealing with international business, there are many restrictions. For example, there are many, custom duties, there are many barriers, there are many tariffs, basically. So there are many restrictions for importing and exporting. One has to obtain the import or export license for such exchange. Another thing is that the international business is a lengthy procedure, because there is a time gap, there is a geographical boundary between the two countries. So it takes time for one good to reach the another country. Next is a language barrier. Yeah, we know that every country has its own language. There is obviously the language barrier between the countries, which can be, a major factor, a major barrier in the international business. Next, next is the risks. Risks can be, many types. First of all, let us understand about the political risk. There are many political risks. For example, अगर जिस कंट्री में हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है जिस कंट्री से वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ रिस्क. अदर रिस्क कैन बी, हमें नहीं पता कि फॉरेन एक्सचेंज जो हम कर रहे हैं दैट इज फॉरेन मार्केट जो है हमारी वो अनस्टेबल है या वो स्टेबल है, तो उसके कारण भी बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द मोटिव्स कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसका मोटिव क्या है, हम क्यों कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस. दो फैक्टर्स की वजह से हो सकता है. पुल फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं दीज फैक्टर्स पुल द बिजनेस टुवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट. पुल द बिजनेस टुवर्ड्स international market. And there are many factors which can pull the business towards international market. These will include the profits, first of all right, or maybe the growth prospects are very good in the other countries. There are growth prospects or growth opportunity. All right, there is competition is very less in that country, or there can be many factors which can be pulling the business towards itself. Next is the push factors.
Push factors are those which push basically the business to the international market. These can be the demand saturation in the domestic market. So let us understand this demand saturation. डिमांड सैचुरेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल कि मेरी एक एक्स वाई जी कंपनी है. ओके, देयर इज एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड, फॉर एग्जांपल दिस इज माय कंपनी. राइट. So now I make 10,000 goods per day. I make 10,000 units per day to meet the demand of India only. तो इंडिया की डिमांड सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही है, बट मेरी कैपेसिटी, जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दैट इज 35,000. Okay, this is my production capacity, but I am not able to utilize this capacity because the demand in India is only 10,000. So what we will do about those extra units? What we will do about the 25,000 units which are left? So what we will do is we will export these 25,000 units to the another country in which demand is there. यू नो अगर वहां पे मैं सेल करती हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट मिलेगा बेचने में. दीज आर द पुश फैक्टर कि मेरी कैपेसिटी तो इतनी है, बट यू नो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 यूनिट्स को ही सेटिस्फाई कर सकती. तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट करती हूँ 25,000 यूनिट्स, तो उससे फायदा क्या होगा कि मुझे प्रॉफिट कमाने में काम में आएगा, प्लस मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी. इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे मिलेगी? क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी, जितना ज़्यादा मेरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतनी कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाती है. कॉस्ट पर यूनिट डाउन चली जाती है. So these are the motives of the international business. Now let us study the advantages of the international business. First of all, the high living standards. Yes, obviously अगर मुझे अच्छे गुड्स मिलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू, मैं इंपोर्ट करवा सकती हूँ अच्छे अच्छे गुड्स, तो मेरे हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे. नेक्स्ट इज दिस इंक्रीज सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर. अगर मेरे कंट्री में कोई एमएनसी सेटअप होती है, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर है वो भी इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इज द वाइडर मार्केट. अब मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है टू चूज फ्रॉम वेरियस मार्केट्स. अब मेरे को सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं, मुझे बहुत सारे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स ट्राई करने को मिल सकते हैं. Next is the reduced risk of business cycle. Business cycles can be of boom, there can be a period of depression. तो हो सकता है कि एक कंट्री में अगर बूम हो रहा है तो दूसरी कंट्री में डिप्रेशन हो. तो अगर मुझे अपना रिस्क थोड़ा कम करना है, तो मैं क्या करूंगी, जिस कंट्री में सपोज मैंने दो कंट्री में अपने बिजनेस सेटअप कर रखे हैं, एक में डिप्रेशन चल रहा है, एक में बूम है, तो चलो ठीक है, इसमें डिप्रेशन है तो मुझे इसमें लॉसेस हो रहे होंगे, बट ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को सिर्फ लॉसेस हो रहे हैं, मुझे कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है दूसरी कंट्री में जाके. तो दैट इज रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल. मेरे जो रिस्क है बेसिकली वो रिस्क स्प्रेड हो गया. नेक्स्ट इज लार्जर स्केल इकोनॉमीज. वही हमने जो डिमांड सैचुरेशन की बात की थी अभी अभी, कि हम 10,000 यूनिट्स बना रहे थे, अब हम 35,000 यूनिट्स की हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो अब हम 25,000 यूनिट्स और बना सकते हैं. तो उससे क्या होता है, लार्जर स्केल इकोनॉमीज होती है. और लार्जर स्केल इकोनॉमीज में क्या होता है, हमारा इससे फायदा ये होता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है हमारी, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी कम हो जाती है. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिससे हमारी कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होएगी तो हम प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएंगे. नेक्स्ट इज दी पोटेंशियल अनटैप्ड मार्केट. हो सकता है कि इंटरनेशनली कोई ऐसी मार्केट है जो अभी तक टैप नहीं की गई है, एंड दैट कैन बी प्रॉफिटेबल फॉर मी. नेक्स्ट इज द कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग कल्चर है, तो अगर हम किसी कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं, तो उनके जो कल्चर होता है, उनके जो आइडियाज होते हैं, जो उनकी फिलोसफीज होती है, वो हमें सीखने को मिलती है.
तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स पता चलते हैं, हमें कल्चर सीखने को मिलता है कि अच्छा उन लोगों का ये कल्चर है, हम अपना कल्चर उन लोगों को सिखा सकते हैं। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। Next is the problems and the barriers of international business. First of all, the political factor. There are many political factors which can pose a threat or pose a problem for an international business. लाइक देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या जो गवर्नमेंट है बाहर की या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज लगा रखी है कि नहीं तुम्हें कस्टम ड्यूटीज इतनी ज्यादा पे करनी पड़ेगी, या टैक्सेस बहुत ज्यादा है, टैक्सेस है हाई है। दैट इज द पॉलिटिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द ह्यूज फॉरेन इंडेटनेस। कभी कभार क्या होता है कि फॉरेन जो बिजनेस है ना, इंटरनेशनल बिजनेस है, वो सिर्फ ट्रेड को नहीं देखता है, ट्रेड के अलावा उसके इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो अगर हम किसी कंट्री से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं या फिर हम किसी से डेट ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, तो हमारे ऊपर ना डेट बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम उसके डेट ट्रैप में फंस भी सकते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है स्टेबल नहीं रहता। कभी देखो, अभी न्यूज खोल के कभी यूएस डॉलर, वन यूएस डॉलर जो होता है वो कभी 80 रुपीज के बराबर होता है, कभी 85 रुपीज के बराबर होता है। अभी तो फिलहाल आई थिंक यही चल रहा है। तो एक्सचेंज बहुत अनस्टेबल है। नेक्स्ट इज द एंट्री रिक्वायरमेंट। मुझे एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए लाइसेंस चाहिए होता है और बहुत सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मुझे फिल करने होते हैं, बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है। उसके बाद ही मैं इंटरनेशनल मार्केट में घुस सकती हूँ। नेक्स्ट इज द ट्रेड बैरियर्स। बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं, यस टैरिफ्स होते हैं बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज वगैरह होती है, बहुत सारी एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती है जो मुझे पे करनी होती है। नेक्स्ट इज द करप्शन। करप्शन तो आजकल बहुत ही बढ़ गया है, इंटरनेशनल बिजनेस में भी करप्शन है और डोमेस्टिकली करप्शन तो है ही। क्वालिटी मेंटेनेंस तो सुपर इम्पोर्टेंट है। वाई? क्योंकि अगर मुझे किसी कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं या किसी गुड कंट्री से मुझे गुड्स इंपोर्ट करने हैं, तो उसकी क्वालिटी होती है। भाई अगर तुम्हारी क्वालिटी ये है, पर्टिकुलर क्वालिटी है, अगर तुम्हारे गुड्स पे ये क्वालिटी है, तो तभी तुम्हारे गुड्स जो है हम एक्सपोर्ट करवाएँगे, नहीं तो नहीं करवाएँगे, तो दैट इज़ क्वालिटी मेंटेनेंस। तो जो कस्टमर्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर क्वालिटी चाहिए होती है, तो जो भी तुम्हारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनके पास एक बर्डन होता है कि हमें क्वालिटी मेंटेनेंस करनी है, क्वालिटी को मेंटेन रखना है। इसके लिए उनको हाई कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है बहुत बार। नेक्स्ट इज़ द फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ आईबी। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, जो कि गैट्स को रिप्लेस करके बना था। ओके। तो डब्ल्यूटीओ की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हुआ क्या था, जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर नेशंस, उन मेंबर नेशंस के बीच में ये लोग एग्रीमेंट इन्होंने किया था कि भाई हम कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाएंगे। ओके, ट्रेड बैरियर्स अगर लगाएंगे भी तो मिनिमम लगाएंगे, एंड देयर आर मेनी प्रोविजंस रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड which are followed till now. नेक्स्ट इज द डिक्लाइनिंग ट्रेड बैरियर्स। डब्ल्यूटीओ के एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ट्रेड बैरियर्स, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स बहुत कम हुए। एफडीआई की ग्रोथ हमारे पास बहुत ज्यादा हुई है। टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज। टेक्नोलॉजी पहले बहुत ओल्ड थी, अब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, एआई आ गया अब तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से आई भी बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट we are going to discuss lastly is the difference between the domestic and international business. So, talking about the meaning, a business is said to be domestic when its international economic transactions are conducted within the geographical boundaries of the country. तो यहाँ पे बात की गई है जोग्राफिकल बाउंड्रीज की। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो ये बहुत सारी कंट्रीज के बीच में होता है, सेवरल कंट्रीज के बीच में होता है। एंड देयर इज नो इंटरनेशनल बाउंड्री, देयर इज नो जोग्राफिकल बाउंड्री। यहाँ का एरिया ऑफ ऑपरेशन विद इन दी कंट्री है, एंड यहाँ पे होल वर्ल्ड है। नेक्स्ट, द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर क्वाइट लो विद इन द डोमेस्टिक, लेकिन यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा था क्वालिटी मेंटेन करनी होती है हमें, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड की क्वालिटी इनको चाहिए होती है इंटरनेशनल बिजनेस में, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। डोमेस्टिक बिजनेस में सिंगल करेंसी में डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल करेंसी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे काफ़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस जो है हमारी, वो काफ़ी कम होती है इन द केस ऑफ द डोमेस्टिक बिज़नेस, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, लाइक टैरिफ्स है, हमारे कस्टम ड्यूटीज़ है, देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। नंबर ऑफ नेचर ऑफ द कस्टमर्स इज़ होमोजेनियस, सारे इंडियंस ही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इंडियंस हैं, कुछ अमेरिकन्स हैं, कुछ अफ्रीकन्स हैं, कुछ कैनेडियंस हैं, तो देयर आर वेरी एन नंबर ऑफ कस्टमर्स, एन नंबर ऑफ नेचर ऑफ कस्टमर्स। बिज़नेस रिसर्च यहाँ पे काफ़ी ईज़िली कंडक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें करना ही होता है, इंडियन एनवायरनमेंट स्टडी करना होता है। लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को स्टडी करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पे फ्री मोबिलिटी है, कहीं पे भी फैक्टर्स जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। नाउ यू नो दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ लैंड, लेबर, capital and entrepreneur. It is not easy for them to, go from one place to another. That's all for today's video. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.